پیارے دوستوں، آج جو ہم آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں ایک ایسی ظالم عورت کا ہے جسے سن کر آپ کی روح بھی کانپ جائے گی اور اس پر اللہ کا ایسا عذاب آیا کہ وہ گدھی بن گئی۔ آخر وہ ایسا کون سا گناہ کرتی تھی جس پر اتنا بڑا عذاب آیا؟ اس واقعے کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور سنیے گا، جس سے آپ کو بھی سبق حاصل ہوگا۔ کسی علاقے میں ایک اللہ والا لکڑہارا رہا کرتا تھا۔ وہ بہت ہی خوش نصیب انسان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بچپن میں ہی اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیا تھا۔ اس لکڑہارے کی بیوی بھی بہت نیک تھی۔ وہ دونوں مل کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ لکڑہارے کی بیوی ماں بننے والی تھی۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ اللہ پاک نے انہیں چاند سا بیٹا عطا کیا۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے سے بے انتہا محبت کرتے تھے، لیکن جب سے لکڑہارے کا بیٹا دنیا میں آیا تھا تب سے اس کی بیوی بیمار رہنے لگی۔ بہت علاج کروانے کے باوجود بھی لکڑہارے کی بیوی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ لکڑہارے کو یہ غم بہت ستا رہا تھا۔ لکڑہارا جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر اپنا اور اپنے بیٹے کا پیٹ پالنے لگا۔ اس لکڑہارے کے پاس جو بکریاں تھیں وہ چرانے کے لیے جب جاتا تو اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے جاتا۔ جب بیٹے کو بھوک لگتی تو بکریوں کا دودھ پلا دیتا، دھو کر اسے پلا کر درخت کے نیچے سلا دیتا۔ اس کی بکریاں چارہ چرتی پھرتی اور وہ درخت کے نیچے عبادت کرنے بیٹھ جاتا۔ جب اس کی بکریاں چارہ چر کر واپس آ جاتی تو وہ اپنے بیٹے اور بکریوں کو لے کر گھر آ جاتا۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے۔ ایک دن لکڑہارے کا بیٹا جوان ہو گیا۔ لکڑہارے نے سوچا کہ اب میں اپنے بیٹے کی شادی کر دیتا ہوں۔ گھر میں بہو آ جائے گی تو گھر کا کام وہ سنبھال لے گی اور میری عبادت میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ لیکن وہ بیچارہ یہ نہیں جانتا تھا کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس کی بہو اسے دن میں تارے دکھانے والی ہے۔ اسے ان سب باتوں کا کوئی علم نہ تھا۔ پھر لکڑہارے نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی۔ اس کے گھر میں صرف 2 ہی کمرے تھے۔ ایک کمرہ انہوں نے اپنے بیٹے اور بہو کو دے دیا اور دوسرے کمرے میں وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ اس لکڑہارے بزرگ کا بیٹا کھیتوں میں کام کرنے لگا۔ صبح جب وہ کام کرنے کے لیے کھیت میں جانے لگا تو اپنی بیوی سے کہا، بابا جان کا خیال رکھنا، کیونکہ انہوں نے بچپن سے آج تک میرا بہت زیادہ خیال رکھا ہے۔ اب ہم دونوں کا فرض ہے کہ دونوں میاں بیوی مل کر ان کا خیال رکھیں۔ اور ہاں، ایک بات یاد رکھنا، میرے ابا جان عبادت گزار بندے ہیں، عبادت میں کوئی خلل مت ڈالنا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کھیتوں میں کام کرنے چلا گیا۔ کچھ دن تو لکڑہارے کی بہو گھر کے کام کاج کرتی رہی، برتن بھی دھوتی اور کھانا وغیرہ بھی بنا دیتی۔ وہ اللہ کی عبادت والا لکڑہارا یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ جو وقت میں کام پر لگاتا تھا اب میں اللہ کی عبادت میں لگاؤں گا۔ اللہ والے بزرگ نے وضو کیا، ہاتھ میں تسبیح اور قرآن پاک پکڑا اور بکریوں کو لے کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ جب وہ اپنی بکریاں چرا کر اور لکڑیاں کاٹ کر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ نہ تو اس کی بہو کمرے سے باہر نکلی اور نہ ہی گھر میں کھانا بنا ہوا تھا۔ لکڑہارا سوچنے لگا کہ شاید میری بہو کی طبیعت خراب ہے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا، خود ہی آٹا گوندھا، روٹی پکائی، کھانا بنایا اور پھر اپنی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ جب اس کی بہو شام کو کمرے سے باہر نکلی تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ سارا گھر کا کام بھی ہوا پڑا ہے اور کھانا بھی بنا ہوا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ پھر روز سے اس نے یہی بہانہ بنانا شروع کر دیا۔ بیچارہ لکڑہارا روز گھر کا سارا کام کرتا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا رہتا۔ اسی وجہ سے لکڑہارے کی نیند بھی پوری نہ ہو سکی اور وہ
बीमार रहने लगा। एक दिन वो सारी रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा, यहां तक कि उसने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज अदा की। उसके बाद काफी देर तक कुरान पाक की तिलावत करता रहा और फिर अपनी बकरियां लेकर जंगल की तरफ चल दिया। जब वापस आया तो उसकी बहू फिर कमरे से बाहर न निकली। अल्लाह वाले लकड़हारे ने सोचा कि आज फिर शायद मेरी बहू की तबीयत खराब होगी, इसीलिए वो खाना नहीं बना सकी। उस अल्लाह वाले लकड़हारे ने फिर खुद खाना बनाया और घर का सारा काम किया। फिर बकरियां लेकर जंगल की तरफ चला गया। एक दिन उन अल्लाह वाले बुजुर्ग का बेटा कहने लगा, बाबा, आप बकरियों को जंगल में न ले जाया करें। अब आप बकरियों का काम छोड़ दें और लकड़ियां भी न काटा करें। आपको जंगल जाने की कोई जरूरत नहीं। आप घर में बैठकर अल्लाह की इबादत किया करें। वो अल्लाह वाला लकड़हारा कहने लगा, बेटा, बकरियां पालना सुन्नत है और अपने घर का काम अपने हाथ से करना भी सुन्नत है, इसीलिए मैं अपने घर का काम खुद कर लेता हूं। उनका बेटा कहने लगा, नहीं अबाजान, अब आपके बूढ़े हाथों में इतनी जान नहीं है कि आप खुद घर का काम कर सके। जब मैं छोटा था तब आपकी मजबूरी थी, अब आपकी कोई मजबूरी नहीं। घर की जिम्मेदारी आपकी बहू की है और बाहर की जिम्मेदारी मेरी है। अब आप सिर्फ कमरे में बैठकर अल्लाह की इबादत करें। अगर आपको कोई चीज चाहिए हो तो मैं ला दूंगा। एक बार उनका बेटा खेतों में काम करने चला गया। वो अल्लाह वाले बुजुर्ग अपने कमरे में बैठकर अल्लाह की इबादत कर रहे थे। जब थोड़ी देर आराम करने के लिए चारपाई पर लेटे तो उनकी बहू कमरे में आई और कहने लगी, चलो उठो, बड़ा आराम कर लिया, अब उठकर घर के सारे काम करो। वो कौन करेगा? मैं कब से बाहर इंतजार कर रही हूं कि ये बूढ़ा उठे और काम करे। वो उठे और आहिस्ता आहिस्ता चलकर बाहर आ गए। बहू भी उनके पीछे पीछे जोर से चिल्लाने लगी, चलो सारे बर्तन साफ करो। और हां, बर्तन साफ करने के बाद सारा झाड़ू पोंछा भी लगा देना। कब तक तुम घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहोगे? और हां, अगर तुम्हारी बीवी भी जिंदा होती तभी मैं तुम लोगों से यही काम कराती। वो बेचारा खांसते हुए बर्तन धोने लगा। बर्तन धोने के बाद उसकी बहू ने भरी हुई बाल्टी कपड़े की उसके सामने रख दी और कहने लगी, ये सारे कपड़े धोकर सुखा दो। कपड़े अभी आधे भी नहीं धुले थे कि जुहर की अजान हो गई। वो बुजुर्ग तुरंत वुजू करने लगे। वुजू करके जब उन्होंने जायमजा बिछाने के लिए पकड़ा तो बहू ने गुस्से में आकर जायमजा को पकड़कर फेंक दिया और कहने लगी, ये क्या तरीका है? काम छोड़कर हर वक्त जायमजा पर बैठ जाते हो। अपने कमरे का हाल देखा है? हर वक्त तुम्हारे बिस्तर से बदबू आती रहती है। जब उन्होंने दोबारा जायमजा उठाकर बिछाया तो वो जायमजा के ऊपर खड़ी हो गई और अपने ससुर का बाजू पकड़कर जबरदस्ती उन्हें कपड़े धोने पर मजबूर कर दिया। कपड़े धोने के बाद उन्होंने सोचा कि अब मैं क़ज़ा नमाज ही पढ़ लेता हूं, मगर उसकी बहू दोबारा आ गई और हुक्म चलाने लगी। मैं अपने घर में दोपहर को ताजा दूध की चाय पीती थी। जब से यहां आई हूं मुझे ताजा दूध की चाय भी नहीं मिली और ऊपर से सारे घर का काम मुझे ही सौंप दिया गया है। और हां, मेरी बात कान खोल कर सुन लो, जब तुम्हारा बेटा घर से चला जाया करे तो तुम खुद ही इस घर का सारा काम किया करो। मैं तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूं कि तुम्हारे लिए खाना बनाऊं। अब वो बेचारा लकड़हारा सारा दिन काम भी करता और जितना हो सकता अपनी बहू से छिपकर अल्लाह की इबादत भी करता। बढ़ापे की वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो सारा दिन घर का काम करता रहा, फिर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया और अपनी नींद भी पूरी न कर सका। वो बीमार हो गया, लेकिन बीमारी की हालत में भी सारी रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहा। तहज्जुद पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ी, इसके बाद काफी देर तक कुरान पाक की तिलावत करता रहा। 3 दिन से उसका यही मुरव्वत चल रहा था। रात को इबादत, दिन को काम, और काम करते वक्त भी
उसकी जुबान पर हर वक्त अल्लाह का जिक्र रहता, क्योंकि उसका कहना था कि काफी दिन से मैंने अल्लाह की इबादत ठीक से नहीं की। तीसरे दिन जब वो लकड़हारा बर्तन धोने लगा तो उसके हाथों से बर्तन छूट रहे थे और वो सही से साफ भी नहीं हो रहे थे। लकड़हारे की बहू गुस्से में आकर बर्तन उठाकर लकड़हारे के हाथों पर मार रही थी और कहने लगी, इन बर्तनों को दोबारा से साफ करो। हम कोई जानवर थोड़ी हैं जो गंदे बर्तनों में खाना खाएंगे। इस बेचारे लकड़हारे ने दोबारा सारे बर्तनों को इकट्ठा किया और फिर से साफ करने लगा। बर्तन साफ करते करते अचानक उन्हें चक्कर आ गया और वो बर्तनों के ऊपर ही गिर पड़े। इस जालिम बहू ने एक बार भी इस बेचारे पर तरस न खाया। वो अपने जूते की ठोकर से उन्हें उठाने लगी। जब वो ठोकर से भी न उठे तो कहने लगी, ये बुढ़ा तो हर वक्त ड्रामा करता रहता है, और ये कहकर अपने कमरे में जाकर लेट गई। जैसे ही बाहर के दरवाजे के खुलने की आवाज आई, वो जल्दी से भागती हुई बाहर आई, लेकिन उस वक्त तक वो लकड़हारा धूप में बर्तनों के पास ही उल्टा मुंह किए पड़ा था। उनका बेटा भागता हुआ अपने बाप के पास आया और अपनी बीवी से कहने लगा, ये बाबा बर्तनों में क्यों गिरे हुए हैं? क्या बाबा बर्तन धो रहे थे? देखो इनके हाथों पर साबुन लगा हुआ है। उसकी बीवी कहने लगी, मैंने तो इनको कोई काम करने को नहीं कहा। असल में इनको शुरू से ही आदत है अपना काम खुद करने की। अब आप बातों में वक्त जाया न करें, इनको जल्दी से हकीम के पास ले जाएं। उनका बेटा फौरन अपने बाप को हकीम के पास ले गया। हकीम ने उन्हें दवा दी और कहा, इनकी खुराक का खास ख्याल रखो क्योंकि ये काफी कमजोर हो गए हैं। इनको आराम की जरूरत है। मुझे लगता है इनकी नींद पूरी नहीं हो रही, इसीलिए ये हर वक्त थकेत के रहते हैं। अगर वो लकड़हारा चाहता तो अपने बेटे को सब कुछ बता सकता था, लेकिन वो अल्लाह वाला था, इसलिए अपने बेटे का घर खराब नहीं करना चाहता था। अगले दिन फिर जब उनका बेटा खेतों में गया तो लकड़हारे की बहू फौरन उनके कमरे में आ गई और कहने लगी, बूढ़े उठ भी जाओ, कितना ड्रामा करोगे? देखो घर में किस कदर गंदगी पड़ा हुआ है और तुझे आराम की पड़ी है। वो लकड़हारा अल्लाह का नाम लेकर बड़ी मुश्किल से उठा और उठते ही जोर जोर से खांसने लगा। खांसी के साथ उसकी सांस भी मुश्किल से निकल रही थी। बेचारे ने सोचा कि चलो पहले मैं चाय बनाकर पी लूं ताकि गले को कुछ राहत मिले, फिर बाकी काम कर लूंगा। अभी उसने चाय बनाने के लिए बर्तन पकड़ा ही था कि इतने में बहू हाथ में झाड़ू लिए उसके पास आ गई और कहने लगी, चलो पहले सफाई करो। बीमारी की वजह से इस बेचारे ने बड़ी मुश्किल से 2 घंटों में थोड़ी सी सफाई की। सफाई करते करते उसकी सांसें फिर उखड़ने लगी। उसने सोचा कि यह सब तो होता ही रहेगा, क्यों ना मैं सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत कर लूं। वो लकड़हारा हिम्मत करके वजू करने लगा और कांपते हाथों से कुरान पाक खोला, कुरान की तिलावत शुरू की। जैसे ही जालिम बहू को पता चला कि बूढ़ा कुरान पाक पढ़ रहा है, वो फौरन झाड़ू लेकर आई और झाड़ू के साथ उसे मारना शुरू कर दिया। वो बेचारा चुपचाप कुरान पाक की तिलावत करता रहा। इस जालिम बहू ने 3 बार झाड़ू उसके कंधों पर मारा। वो बेचारा दर्द से आंसू बहाता जा रहा था। कुरान पाक बंद करके जल्दी से खड़ा हुआ और कहने लगा, बेटी अब मुझ में काम करने की हिम्मत नहीं रही। मैंने सारी जिंदगी काम किया है, मगर अब मुझ में ताकत बाकी नहीं रही। मैं क्या करूं? वो कहने लगी, जब अजान होती है तब तो तुझे बड़ा ताकतवर महसूस होता है। तुम्हें बड़ी हिम्मत आ जाती है कि उठकर नमाज पढ़ने लगते हो। बुढ़े एक बात कान खोल कर सुन लो, ये जो सारा दिन जमीन पर टिक कर पड़े रहते हो, आज के बाद अगर मेरे सामने ये सब किया तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। तुम पर कितने पैसे खर्च होते हैं, दवाइयों का खर्च अलग होता है। फिर वो और कहने लगी, अब जल्दी से पूरे घर की सफाई करो, तेरा बेटा आने वाला है, और अगर तुमने अपने बेटे को कुछ भी बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे बेटे का घर खराब कर दूंगी। लकड़हारा उसकी धमकी सुनकर चुप रहा, फिर चुपके से उठा और आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर की सफाई करने लगा। सफाई करते करते उसकी सांस फूल रही थी।
वो अपने कमरे में जाकर जल्दी से दवा ढूंढने लगा। दवा ढूंढकर जब वो बाहर आया, पानी का गिलास पकड़ा और दवा खाने लगा, तो जालिम बहू ने दवा पकड़कर कचरे में फेंक दी और कहने लगी, तुम इतनी जल्दी कहां मरने वाले हो? फिर उसने अपनी फूलती हुई सांस के साथ पूरे घर की सफाई पूरी की। वो गरीब लकड़हारा रात को जब अल्लाह की इबादत करता तो बहू से छुप कर करता और अपने अल्लाह से बातें करता कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा दिल चाहता है कि मैं इस घर से कहीं दूर चला जाऊं, क्योंकि मैं इस घर में रहकर तेरी इबादत ठीक से नहीं कर पाता। वो लकड़हारा बुजुर्ग सारी रात जाए नमाज पर बैठकर रोता रहा और सोचता रहा कि मैं क्या करूं। तहज्जुद की नमाज पढ़कर फौम हुआ, अपनी जाए नमाज उठाई, तस्बीह पकड़ी और कुरान पाक हाथ में लेकर घर से निकल गया। वो किसी जंगल की तरफ चल पड़ा। फजर की अजान की आवाजें गूंज रही थी और वो अल्लाह वाला बुजुर्ग बस चला जा रहा था। वो खुद नहीं जानता था कि वो कहां जा रहा है। रास्ते में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे परिंदे और दरख्त सब अल्लाह की हम्द और सना बयान कर रहे हों। वो एक दरख्त के नीचे पहुंच गया, जाए नमाज बिछाई और अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गया। इसी दौरान उसने एक बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था कि बच्चा किसी बड़ी तकलीफ में है। जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि एक आदमी बच्चे को गोदी में लिए हुए तेजी से भाग रहा था। लकड़हारा उस आदमी के पास पहुंचा और पूछने लगा, ये बच्चा क्यों रो रहा है? वो आदमी अपने बच्चे की तकलीफ में बेहद परेशान था और कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वो बस जल्दी से किसी हकीम के पास पहुंचना चाहता था ताकि अपने बच्चे की तकलीफ दूर कर सके। वो अल्लाह की फिर उस अल्लाह वाले बुजुर्ग ने उस आदमी को सुकून से बिठाया और कुछ पढ़ने लगा और पढ़ते पढ़ते उसके बच्चे के पैर पर दम किया तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो उस आदमी ने उसको कहा कि आप कौन हैं और कहां जा रहे हैं? उसने बोला, बस मैं अल्लाह की इबादत करने जंगल आया हूं। तो उसने बोला कि आप जो है ना, जंगल की बजाय आप मेरे घर पर आकर रहें, मैं आपकी खूब खिदमत करूंगा। फिर उसने अल्लाह वाले को जबरदस्ती इस बात पर आमादा किया और उसे लेकर अपने घर चले आए। वहां पर उस आदमी की एक बहन भी थी, एक बंदी थी। उसका दिल चाहता था कि वो भी अल्लाह का दीन सीखे, अल्लाह के दीन को आगे फैलाए। बड़े ही प्यार और मोहब्बत से वो इस लकड़हारे अल्लाह वाले के लिए खाना लेकर आई। लकड़हारे ने बड़े प्यार से और मोहब्बत से उसके सिर पर हाथ रखा और खाना खा लिया। वो लकड़हारा के पास हमेशा बैठी रहती। वो हर समय उनसे दीन की बातें सीखती रहती, कुरान पाक की तालीम सीखने लगी और यूं आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की इबादत करने वाली बन गई। इस आदमी का घर बहुत छोटा था मगर उसमें सुकून था। इस आदमी के पास सिर्फ एक दो ही बकरियां थी, मगर जैसे ही अल्लाह वाले बुजुर्ग वहां पर आए, उनकी बकरियों में बरकत ही बरकत हो रही थी। काफी ज्यादा बकरियां उनके पास हो चुकी थी। उसने अपने घर में आते ही अल्लाह वाले लकड़हारे को बकरी का ताजा दूध पीना शुरू कर दिया। जब इस आदमी ने अपने इलाके के लोगों को बताया कि ये बुजुर्ग के हाथों में शिफा है, उनके पास नूरी इल्म है और वो अपने इल्म से लोगों का इलाज करते हैं, तो इलाके के लोग अपनी बीमारी का इलाज उनसे करवाने लगे। इलाके के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। हालांकि वो कोई इलाज नहीं करते थे, बस अल्लाह के नेक बंदे थे। अल्लाह पाक ने आयत के जरिए उनके हाथ में शिफा रख दी थी। वो अल्लाह वाला लकड़हारा सारा दिन अपनी इबादत में मसरूफ रहता। जब से ये बुजुर्ग उनके घर आए थे, उनके कारोबार में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा था। लोग दूर दूर से उनके पास इलाज करवाने के लिए आते तो अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे देता। वो अल्लाह वाला लकड़हारा वहां रहकर बहुत खुश था। अब तो उसकी सेहत भी ठीक हो चुकी थी, मगर उसे अपने बेटे की बहुत ज्यादा याद आती थी। वो अक्सर सोच में रहता कि आखिर
मेरा बेटा इस औरत के साथ कैसी जिंदगी गुजार रहा होगा। दूसरी तरफ उसके बेटे ने अपने बाप को ढूंढने में दिन रात एक कर दी। वो हर वक्त अपने बाप की वजह से परेशान रहने लगा। इसी परेशानी की वजह से वो अपने खेतों में ठीक से काम नहीं कर पाता था, नहीं कर पा रहा था, और उसकी बीवी खुश थी। चलो, इस बूढ़े से तो जान छूट चुकी है, मगर ये नहीं जानती थी कि ये खुशी सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान है। जब फसल काटने का वक्त आया तो फसल भी उनकी बर्बाद हो चुकी थी। उसमें काफी सारा नुकसान हुआ। कुछ बकरियों ने दूध देना बंद कर दिया था। ज्यादा बकरियां बीमारी की वजह से मर गई। जब घर के हालात काफी खराब हो गए तो उसकी बीवी ने अपनी हकीकत दिखाना शुरू कर दी। अपने शौहर के सामने जुबान चलाने लगी। उसे हर वक्त झगड़ा करती। जब वो खेतों में नहीं जाता तो उसे ताने देती, नकारा कहती, यहां तक कि उसे ठीक से खाना भी नहीं देती थी। खुद तो अच्छे खाने खा लेती, मगर जो बच जाता वो खाना उसके सामने फेंक देती। वो बेचारा यही समझता था कि शायद घर में सब कुछ खत्म हो गया है और रोटी पानी के साथ खानी पड़ रही है, मगर वो नहीं जानता था कि ये खुद बहुत अच्छा खाना खाती है। बस वो बीवी के लहजे से समझ चुका था कि उसकी वजह से लगता है मेरा बाप घर से गया है। मेरा बाप तो घर में रहकर इबादत करता था। उसकी इबादत की वजह से हमारे घर में अल्लाह ने बहुत बरकत रखी हुई थी। जब से मेरा बाप घर से चला गया तो रौनक भी चली गई। वो बाप की वजह से घर से बाहर रहने लगा। वो भी बकरियों का कारोबार करने लगा, इसलिए वो कई कई दिन घर नहीं आता था। एक दिन वह किसी इलाके में ताजर के पास गया बकरियां लेकर। जब गया, उस ताजर के पास खूबसूरत बकरियां देखी। वो बकरियां बिल्कुल ऐसी थी जो कभी उसके बाप के पास हुआ करती थी। अभी वो दोनों ताजर बातें कर रहे थे कि उसकी नजर एक झोंपड़ी पर पड़ी जो कि बाहर से काफी खूबसूरत दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे मस्जिद की तरह सजाया हो। वो बकरियों का सौदा तय कर रहा था। वो आदमी से कहने लगा, इस झोंपड़ी में क्या कोई रहता है? वो आदमी कहने लगा, जी हां, इस झोंपड़ी में बहुत ही खास और नेक अल्लाह के वली रहते हैं, जिनके हाथों में अल्लाह ने बहुत शिफा रख दी है। उनके पैरों में अल्लाह ने बहुत ही बरकत रखी है कि वो इस झोंपड़ी में आए हैं। ये घर बरकत वाला हो चुका है। लोग तो उनसे मिलने के लिए दूर दूर से आते हैं। वो कहने लगा, क्या मैं इन बुजुर्गों से मिल सकता हूं? क्योंकि मैं उनसे मिलने के लिए बेताब हो रहा हूं। वो आदमी कहने लगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि इस वक्त उनकी खास इबादत का वक्त है। आप असर की नमाज के बाद आ जाना। वो उनसे मिलने के लिए बाहर पेड़ के नीचे बैठकर इंतजार करने लगा। अब तक इस आदमी ने काफी खातिर उतरत की। थोड़ी देर बाद असर की अजान हुई। इन दोनों ने भी असर की नमाज अदा की और फिर से उसी दरख्त के नीचे आकर बैठ गए। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि झोपड़ी का दरवाजा खुला। जैसे ही दरवाजा खुला, वो उठकर खड़ा हो गया। जब काफी अरसे बाद अपने बाप को देखा तो पहचान गया कि ये तो मेरा बाबा है। वो अल्लाह वाला लकड़हारा भी अपने बेटे की तरफ लपका और फिर दोनों बाप बेटा एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। वो आदमी इन दोनों को हैरत से देख रहा था। वो अपने बाप से कहने लगा, बाबा, आपसे मिलने के लिए मैं मछली की तरह तड़प रहा हूं, जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है। वो अल्लाह वाले बुजुर्ग भी कहने लगे, बेटा, मैं भी तुमसे मिलने के लिए बेचैन था, मगर मैं क्या करता, मेरी मजबूरी थी। यहां मैं अपनी इबादत ठीक से नहीं कर पा रहा था। वो आदमी उन्हें सवालिया नजरों से देख रहा था। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कहा, ये मेरा बेटा है। वो हैरान हुआ और कहने लगा, आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आपका एक बेटा भी है? फिर वो इस आदमी को लेकर एक अलग जगह पर गए और कहने लगे, जब मैं इबादत करता था तो मेरी बहू मुझे इबादत करने नहीं देती थी और मैं नहीं चाहता था कि मेरे बेटे का घर खराब हो और मेरी इबादत में खलल आए।
इसलिए मैं घर छोड़कर वापस आ गया था। फिर वो अल्लाह वाला लकड़हारा अपने बेटे के पास आया और कहने लगा, बेटा, तुम जब चाहो मुझसे मिलने आ सकते हो। बेटा कहने लगा, नहीं बाबा जान, मैंने आपको कहां कहां तलाश नहीं किया। आपके बिना घर में कोई रौनक नहीं है और न ही मेरा दिल लगता है। मुझे वो घर आपके बिना कब्रिस्तान लगता है। बाबा जान, जिस घर में मां बाप का साया न हो वो घर घर नहीं रहता बल्कि कब्रिस्तान बन जाता है। वो बच्चों की तरह जिद कर रहा था और एक बाप अपने बच्चे की जिद पूरी करने के लिए तैयार हो गया। अब जब लकड़हारा वहां से जाने लगा तो वो आदमी, उसकी बहन और उसका बेटा रो रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अल्लाह वाले वहां से जाए। मगर वो अपने बेटे के हाथों मजबूर होकर अपने बेटे के साथ चल पड़े। उनका बेटा खुद भी अपने घर में काफी दिनों से नहीं आया था। जब काफी दिनों बाद उसने अपने घर में दस्तक दी तो उसकी बीवी दौड़ती हुई दरवाजा खोलने के लिए आई। पूछने लगी, कौन है? उसके पति ने कहा, दरवाजा खोलो, मैं हूं। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर उसकी हैरत से आंखें खुली की खुली रह गई। वो हैरान हो गई कि इतने अरसे बाद ये बूढ़ा वापस आ गया, हमारा जीना हराम कर देगा। अब वो लकड़हारा अपनी बहू का चेहरा देखकर समझ चुका था कि ये मेरे आने पर खुश नहीं है। उसकी बहू बिना सलाम किए अंदर चली गई। शाम का खाना खाने लगे तो बेटा अपने बाप को बुलाने के लिए अंदर जाने लगा। उसकी बहू कहने लगी, रहने दे, उन्हें आराम करने दे। मैं उनका खाना उनके कमरे में दे आती हूं ताकि वो आराम से खा सके। वो कहने लगा, नहीं, आज बाबा जान हमारे साथ मिलकर खाना खाएंगे। काफी अरसे से उन्होंने हमारे साथ खाना नहीं खाया। वो मुंह लटकाए हुए खाना खाने लगी। वो अपने बाप को बुलाने के लिए चला गया। वो दोनों बाप बेटा बहुत मजे और खुशी से खाना खा रहे थे। तभी उनकी बहू अपना खून जला रही थी। लेकिन लकड़हारा अपनी पुरानी रूटीन पर कायम था। रात को इशा की नमाज के बाद काफी देर तक इबादत में लगा रहता और तहज्जुद पढ़ता। सुबह की नमाज पढ़कर सूरज निकलने तक कुरान पाक की तिलावत करता रहता। वो चुपचाप ये सब कुछ सहन कर रही थी क्योंकि उस समय उसका पति घर में मौजूद था। जब उसका पति घर से बाहर चला गया तो वो सीधा लकड़हारे के कमरे में गई और जाकर उसकी चारपाई को जोर से अपने पैरों से झटकने लगी। कहने लगी, उठ और सफाई कर। कहां से आ गया तू रोटियां तोड़ने के लिए? हम तो पहले ही भूख से मर रहे हैं। मैं तो सोच रही थी कि तू कहीं डूब कर मर गया होगा। वो लकड़हारा बेचारा हमेशा की तरह उठा और चुपचाप सफाई करने लगा। बर्तन धोए, फिर सारे कपड़े धोए, फिर अपने कमरे की सफाई करने लगा। उनका बेटा आ गया। जब बेटे ने देखा कि मेरा बाप सफाई कर रहा है तो कहने लगा, बाबा, आपको क्या जरूरत है काम करने की? ये सब तो आपकी बहू कर देगी। आप परेशान क्यों होते हैं? ये सुनकर बहू दौड़ती हुई आई और कहने लगी, आप न करें बाबा, ये सब करके आप हमें शर्मिंदा करते हैं। मैं सब कर लूंगी, बस आप आराम करें। अब आपको आराम करने की उम्र है। अब फिर उनकी वही जिंदगी शुरू हो चुकी थी। सुबह रोज काम करना, नमाज के लिए कोताही हो जाना, कभी नमाज छूट जाना। वो बहू अल्लाह वाले लकड़हारे को इबादत करते हुए देखकर बहुत चिढ़ती थी। बस ऐसे ही उनकी जिंदगी चल रही थी। एक दिन काफी ज्यादा धूप थी। ससुर धूप में बर्तन साफ कर रहा था। बर्तन साफ करते हुए अचानक बाहर का दरवाजा खुला और अंदर एक लड़की दाखिल हुई। वही लड़की थी जिसके पास ये बुजुर्ग रहकर आए थे और उन्हें अल्लाह का दीन सिखा रहे थे। जब उसने देखा कि वो लकड़हारा बर्तन धो रहा है तो कहने लगी, आप बर्तन क्यों धो रहे हैं? आपकी बहू कहां है? जब लकड़हारे ने इस लड़की को देखा तो बहुत ज्यादा खुश हुआ। कहने लगा, बेटी, मेरी बहू के सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बर्तन साफ कर देता हूं।
गंदे बर्तन पड़े हुए अच्छे नहीं लगते। तुम बताओ कैसी हो? वो कहने लगी, बाबा मैं तो ठीक हूं। मेरा अपने घर में दिल नहीं लग रहा था। जब से आप इस घर से आए हो हमारा तो दिल ही नहीं लगता। भाई भी आपके लिए बहुत ज्यादा परेशान है और आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं। वो लड़की भी लकड़हारे को अपने बाप जैसा ही समझती थी, क्योंकि इस लड़की को भी अल्लाह जो कुछ कहना है आराम से कह लो, गुस्से से बात ना किया करो। बहू ने गुस्से में कहा, आराम से? आराम तो तुमने हमें कभी करने ही नहीं दिया। बस अपने बेटे की सेवा के बहाने यहां आप बैठे हो, घर के काम भी नहीं करते और दिन भर इबादत में लगे रहते हो। लकड़हारा बेचारगी से कहने लगा, बेटी मैं इबादत इसलिए करता हूं कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर बोझ हूं तो मैं यहां से चला जाता हूं। यह सुनकर बहू कहने लगी, चलोगे तो क्या होगा? यह घर मेरे मियां का है और वो तुम्हें यहां रहने देते हैं, इसीलिए मैं कुछ नहीं कहती। लेकिन याद रखना, अगर यहां रहना है तो काम करना पड़ेगा। लकड़हारा चुप रहा और दोबारा अपने कमरे में जाकर बैठ गया। वो दिन भर काम करता रहा और शाम को जब बेटा घर आया तो उसने अपने बाबा को थका हुआ देखा। बेटे ने अपनी बीवी से पूछा, बाबा इतने थके हुए क्यों हैं? क्या तुमने उनसे ज्यादा काम करवा दिया? बीवी ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं, ये तो खुद ही सारा दिन कुछ न कुछ करते रहते हैं। मैं तो इन्हें कहती हूं कि आराम करें, लेकिन ये मानते ही नहीं। बेटे ने कहा, बाबा आप आराम क्यों नहीं करते? आपकी उम्र अब आराम करने की है। आपको सिर्फ इबादत करनी चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। लकड़हारा मुस्कुराकर कहने लगा, बेटा तुम्हारी बात सही है, लेकिन अगर मैं काम नहीं करूंगा तो बहू को बुरा लगेगा। वो पहले ही मुझसे नाराज है। यह सुनकर बेटा चुप हो गया और कुछ नहीं कहा। लकड़हारा रात को थका हुआ अपने बिस्तर पर लेटा और देर तक दरूद शरीफ पढ़ता रहा। वो अल्लाह से दुआ करता रहा कि उसकी बहू का दिल नरम हो जाए और वो उसके साथ अच्छा सुलूक करे। सुबह हुई तो लकड़हारा फिर से घर के काम में लग गया। वो अपनी बहू के हर हुक्म को चुपचाप मानता और उसके लिए दुआ करता, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि अल्लाह उसे अपनी इबादत के लिए ज्यादा वक्त दे और वो अपनी आखिरी उम्र में शांति से जिंदगी गुजार सके। मुझे कहा करो मेरा जाए नमाज और मेरी तस्बीह मत फेंका करो। इतना जुल्म मत करो, ऐसा काम अल्लाह को पसंद नहीं। वो बेचारा अभी कुछ बोल ही रहा था कि जालिम बहू ने लकड़हारे को पकड़कर बाहर कमरे से धक्का दे दिया और कहने लगी, चल बूढ़े काम कर। जितनी फुर्ती से मदद करता है, अगर उतनी ही फुर्ती से काम करे तो घंटों का काम मिनटों में हो सकता है। वो बेचारा अपनी कांपती टांगों के साथ उठा और आंगन में झाड़ू देने लगा। कच्चा आंगन होने की वजह से काफी मिट्टी उड़ रही थी। अब इस मिट्टी के उड़ने की वजह से लकड़हारे को खांसी आने लगी। खांसते खांसते वो काफी देर तक आंगन में बैठा रहा, मगर जालिम बहू को इस पर जरा भी तरस न आया। कहने लगी, चल बूढ़े जल्दी काम कर, इतना काम पड़ा है। इनकी बहू काम न होने के बावजूद भी जानबूझकर उन्हें काम पर लगाए रखती थी। आज इस लकड़हारे बुजुर्ग ने बहुत ज्यादा काम किया था, जिसकी वजह से उन्होंने खाना भी नहीं खाया था और उनसे कोई नमाज भी अदा नहीं की गई, क्योंकि उनकी बहू उन्हें नमाज पढ़ने नहीं देती थी। आज वो बहुत ज्यादा रो रहा था, मगर उसकी जुबान को अल्लाह के जिक्र से कोई नहीं रोक सकता था। वो हर वक्त अपनी जुबान से अल्लाह का जिक्र कर रहा था। वो रात को जब थकाहारा वजू करके कमरे में जाए, नमाज बिछाने लगा तो जाए, नमाज वहां पर नहीं थी। तस्बीह देखी तो तस्बीह मौजूद न थी, मगर लकड़हारे ने हिम्मत न हारी। उन्होंने साफ कपड़ा बिछाकर नमाज अदा की और अपनी उंगलियों पर तस्बीह करने लगा। सुबह हुई तो फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत कर रहा था। बाहर बर्तनों की आवाज आ रही थी। वो अपने बर्तनों को जोर जोर से फेंक रही थी।
वो लकड़हारा कुरान की तिलावत छोड़कर बाहर आ गया। क्या देखता है कि सारे आंगन में बर्तन बिखरे हुए हैं, कचरे के ढेर लगे हुए हैं। शायद आज उनका बेटा सुबह बकरियां लेकर जल्दी चला गया था, इसलिए आज सुबह को ही उसकी बहू तमाशा लगाए बैठी थी ताकि ये इबादत ना कर सके। बस उनकी लंबी लंबी इबादत से बहुत चिढ़ती थी। हालांकि ये खुद भी तो मुसलमान थी। मुसलमान होने के बावजूद उनकी इबादत से बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई थी। जैसे ही लकड़हारा अपने कमरे की तरफ आने लगा, जालिम बहू ने उनके बाल पकड़कर उन्हें नीचे फेंक दिया। उसने घर के सारे काम फिर से कुरान पाक की तिलावत करने लगा। जब इबादत करते हुए इस बहू ने देखा तो वो कमरे में आई और उसे जूतियों से पीटना शुरू कर दिया, मगर वो लकड़हारा अपनी तिलावत में व्यस्त रहा, क्योंकि वो जानता था कि वो सारे काम कर चुका है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी तिलावत पूरी किए बिना यहां से नहीं उठेगा। जब वो काफी मारपीट कर चुकी और उसने देखा कि वो यहां से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा, तो उसने सोचा क्यों न मैं कुरान पाक को ही अपने घर से निकाल दूं। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, अस्तगफिरुल्लाह। वो कुरान पाक को फेंकने का इरादा करके उसे पकड़ने लगी तो उसके हाथ और पैर टेढ़े हो गए। उसके चेहरे पर अजीब तरीके से खाल उतरना शुरू हो गई। देखते ही देखते वो औरत एक गधी की शक्ल कर चुकी थी। जब इस बुजुर्ग ने पीछे मुड़कर देखा तो लंबी ज़बान लटकाई हुई वो उसकी तरफ देख रही थी। लकड़हारा बेखुद हो गया। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह का वर्ड करता रहा और वर्ड करता हुआ कमरे से बाहर आ गया। फिर आगे देखा कि उनका बेटा खड़ा था, यानी कि उनका बेटा सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका था। वो औरत गधी बनी हुई अपने पति की तरफ आई। उसका पति देखकर अपने कानों को हाथ लगाने लगा। उसका सारा शरीर गधे जैसा हो चुका था, मगर उसका चेहरा अल्लाह पाक ने औरत जैसा ही रहने दिया। ये वही औरत थी जो अल्लाह वाले बुजुर्ग को इबादत करने से रोकती थी। बेटे ने उस गधी बनी हुई औरत को घर से बाहर निकाल दिया। ये औरत लोगों के लिए एक इबरत का निशान बन गई। इस इलाके के बच्चे उसे देखकर डर रहे थे। लोग उसे पकड़कर जंगल में छोड़कर आए। वहां के जंगली जानवरों ने उसे नोच नोच कर चीर फाड़ कर रख दिया। ये बात के हर इलाके में आग की तरह फैल चुकी थी। जब ये बात इस ताजर तक पहुंची तो वो भाई बहन दोनों कानों को हाथ लगाने लगे और कहने लगे, बाबा जान, ये सब क्या हुआ? वो अल्लाह वाला बुजुर्ग कहने लगा, बेटा देखो, अगर कोई सच्चा मुसलमान हो और एक मुसलमान को नमाज पढ़ता देखे तो दूसरा मुसलमान उसे देखकर नमाज पढ़ना शुरू कर देता है, मगर मेरी बहू ऐसी नहीं थी। जब मैं अल्लाह की इबादत करता, वो मेरी इबादत से चढ़ जाती थी। अल्लाह ताला ने उसे ऐसी सजा दी है और उसे लोगों के लिए इबरत का निशान बना दिया है। और वैसे भी अल्लाह ताला को पता था कि ये औरत मेरे बेटे के लायक नहीं। मेरे बेटे के लायक तो ये मेरी नेक बेटी है। इस लकड़हारी बुजुर्ग ने ताजर की बहन से अपने बेटे का निकाह कर दिया। अब इस ताजर की बहन ने घर में ही एक छोटा सा जामिया खोल लिया, जिसमें इस इलाके के बच्चे दीन की तालीम हासिल कर रहे थे। बच्चे हाफिज कुरान बन रहे थे। अब वो लकड़हारा अपनी इस बहू से बहुत ज्यादा खुश था और इसकी ये बहू लकड़हारी अल्लाह वाले की बहुत ज्यादा सेवा किया करती थी। अब उनका परिवार एक खुशहाल परिवार बन चुका था। प्यारे नाजरीन, ये आज का दुख भरा वाकया आपको कैसा लगा? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।